Good morning, everyone. So, we will move ahead, right? We will see the new sets of transactions related to the fixed assets. Okay, so let's come to the chart. Yeah, number 24, 20 to 23. I will take later on 24. ठीक है, लिख लेना. Fixed assets purchased on cash. 25th is fixed assets purchased on credit. Fixed assets purchased on cash, fixed asset purchased on credit. लिखो. Fixed asset purchased on cash, fixed asset purchased on credit. Okay, लिख लेना. Whenever you purchase goods, the account is purchases account. Whenever you sell the goods, the account is sales account. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. Whenever you purchase the goods, it is purchase account at cost price. Whenever you sell the goods, it is sales account at selling price. But when you purchase or sell fixed asset, it is always that particular asset account. Means, right? If it is a machinery account. If it is a furniture account. If it is a land, it is a land account, right? If it is computers, computer account. Vehicles है तो vehicle account, like that. Purchase हो या sale हो, account remains same. So लिख लेना. Fixed assets purchased on cash basis is, the accounts involved is fixed asset. You purchase fixed asset and you give cash. Cash goes out. Fixed asset comes in, cash goes out, right? Both are assets. Fixed assets are increasing, cash is decreasing. Cash is decreasing. Increase in asset debit, decrease in asset credit. Equation में fixed asset will increase, current asset that is cash will decrease, no change in the capital, no change in the liability. Because हमने liability generate ही नहीं की, जो भी था हमने तुरंत पेड कर दिया. Whatever it was, we paid instantly. ठीक है? Then आगे. Fixed asset purchased on cash. आगे. Now the next is fixed asset purchase on credit. Fixed asset account debit. Fixed asset increases debit. If you purchase on credit, you don't give cash or check. The liability generated. Party account. The name of the person. Name of the seller. जिससे हमने fixed asset purchase किया. He becomes a liability creditor. Liability increases credit. Fixed assets increases. No change in the capital. Liability increases.
26. Fixed assets sold, right, on profit. Fixed assets sold on profit, right, on कैश. आपने 1 लाख की मशीनरी 1,20,000 में सेल की, हो सकता है 10 लाख की लैंड आपने 40 lakhs में सेल की, 30 lakhs का प्रॉफिट होगा. सो फिक्स एसेट्स आर सोल्ड ऑन अ प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस. सो 10 लाख की लैंड आपने सपोज 50 lakhs में सेल की, तो यू विल रिसीव 50 lakhs कैश अकाउंट डेबिट. कैश असेट इंक्रीजेस, डेबिट. कैश आपको 50 लाख मिलेंगे ना, आपने लैंड सेल की, ठीक है. आगे यू सोल्ड द लैंड, देन पार्टी अकाउंट, नेम ऑफ द पार्टी, जो भी रहेगा सेलर का नाम, ठीक है. कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 26. मशीनरी या फिक्स्ड एसेट डिक्रीजेस, जो भी है, फिक्स्ड एसेट डिक्रीजेस, फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीजेस, क्रेडिट. फिक्स्ड एसेट डिक्रीजेस, क्रेडिट. कैश इंक्रीजेस, डेबिट. फिक्स्ड एसेट डिक्रीजेस, क्रेडिट. ठीक है. नेक्स्ट, देयर इज अ प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऐसे अकाउंट रहेगा एक. फिक्स्ड एसेट is a income. Profit increases, income increases, credit. मैं एग्जांपल में इक्वेशन समझाऊंगा. फिक्स एसेट डिक्रीजेस, कैश इंक्रीजेस. फिक्स एसेट डिक्रीजेस, कैश इंक्रीजेस. प्रॉफिट इंक्रीजेस मींस कैपिटल इंक्रीजेस. नो चेंज ऑन द लायबिलिटी. स्टॉक जैसे इक्वेशन इज लाइक स्टॉक. देन नेक्स्ट, $27. Fixed assets sold on profit on cash on credit. खाली चेंज करो. कैश कैश रहेगा तो कैश या बैंक अकाउंट रहता है. क्रेडिट पे रहेगा तो डेटर क्रेडिटर अकाउंट रहता है. ठीक है. परचेस रहेगा तो क्रेडिटर, सेल रहेगा तो डेटर. हमने सेल की फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट, सो हमें उस बंदे से पैसे लेने हैं, इसलिए वो हमारा डेटर हो जाएगा. पार्टी अकाउंट डेबिट, उसका नाम, जो भी पार्टी के साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो. अकाउंट, पार्टी अकाउंट, असेट अकाउंट इंक्रीजेस, डेबिट. हमें उससे रिसीव करने, वो हमारा डेटर बन गया, डेबिट. फिक्स एसेट डिक्रीजेस बिकॉज हमने सेल की फिक्स एसेट. फिक्स एसेट गोज आउट, डिक्रीजेस क्रेडिट, एंड देयर इज अ प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनकम है, सॉरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट. प्रॉफिट इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस, राइट, क्रेडिट. ये दोनों सेम ही है. 26, 27. व्हाट इज द डिफरेंस? अगर कैश है तो कैश विल इंक्रीज, अगर क्रेडिट है तो डेटर्स विल इंक्रीज. बाकी सब वैसे के वैसे. 24 and 25 are also same. 24 and 25 are also same. If you purchase on cash, cash will decrease. If you purchase on credit, creditors will increase. बाकी वैसे के वैसे. आगे, so debtor, fixed asset will decrease, सेल किया आपने,
Debtors will increase, profit will increase, therefore capital will increase. No change in the liability. No change in the liability. ठीक है, आगे 28 29 इज ऑल्सो सिंपल, और फिर हम इन सबके एग्जांपल करेंगे, ठीक है। 28, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट सोल्ड एट लॉस ऑन कैश। आपने लॉस पे सेल किया, यू सोल्ड फिक्स एसेट एट लॉस, तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? यू विल रिसीव कैश, सेल किया तो कैश मिलेगी, asset increases debit, loss on sale of fixed asset, अकाउंट क्या रहेगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस इज एक्सपेंस, इंक्रीजेस डेबिट, लॉस इंक्रीज हो गया डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया डेबिट, एंड फिक्स एसेट डिक्रीजेस, सेल किया आपने, परचेस करोगे तो फिक्स एसेट, सेल करोगे तो फिक्स एसेट डिक्रीज होंगे, क्रेडिट, सिंपल। कैश इंक्रीजेस, फिक्स एसेट डिक्रीजेस, या आप पहले जैसे लिखते हैं वैसे लिखो, लिखो fixed asset decreases, cash increases, loss decreases capital, no change in the liability. Loss will decrease the capital, losses decreases profit, profit decreases capital, less profit will decrease the, to that extent capital will decrease. Profits are added in capital, losses are deducted from capital. Same on credit लिखता हूं आप खाली 29, ठीक है। 29, fixed assets sold at loss on credit, on credit, fixed asset sold एट लॉस ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे तो कैश नहीं आएगी, पार्टी अकाउंट, डेटर पार्टी अकाउंट, बाकी वैसे के वैसे रहेगा सब। पार्टी अकाउंट असेट इंक्रीजेस डेबिट, हमें उससे पैसे लेने, वी हैव टू रिसीव द मनी फ्रॉम दैट पर्सन, ही इज आवर डेटर, दिस इज लॉस, बाकी वैसे के वैसे कॉपी करता हूं। खाली कैश है तो कैश आएगा, क्रेडिट है देन पार्टी विल कम, सेम ध्यान देना, क्रेडिट पे सेल किया, डेटर फिक्स एसेट विल डिक्रीज, डेटर्स विल इंक्रीज, लॉस है कैपिटल विल डिक्रीज, नो चेंज, लिखो, and then we will take an example. Everyone, fixed asset purchased on cash, fixed asset purchased on credit, कैश पे कर सकते हो, क्रेडिट पे कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, you can sell the fixed asset on cash, you can sell the fixed asset on credit, it's your choice, but that per sale can be at a profit or can be at a loss. आपको लगे इतने ट्रांजैक्शन है, बहुत सिंपल होता है एंट्री करना, मैं समझाता हूं, ध्यान देना, ठीक है। आगे नाउ आई विल टेक यू टू द, I will take you to the example, right?
Goods purchased on cash, rupees 20,000. Second, goods purchased on credit, rupees 30,000. Then, goods sold costing rupees 15,000 at rupees 25,000 on cash. 4. Goods sold costing, हमारे पास 50,000 के गुड्स थे, 50 के गुड्स थे, उसमें से 15 के सेल हो गए, अभी भी हमारे पास कितने के बाकी हैं? 35 के. 27,000 at rupees 40,000 on credit. Next, number 5. Machinery purchased on cash, rupees 1 lakh. 6. ठीक है, मशीनरी परचेस्ड. देन फर्नीचर परचेस्ड on credit, rupees 50,000. 7. Land of rupees 10 lakhs sold at rupees 50 lakhs on cash. Vehicle of rupees 6 lakhs sold at rupees 2 lakhs on credit. These are 8 transactions. These 8 transactions will help you to understand the thing. Let's see. Can I start? Yes. Solution. Solution. ध्यान देना. Whenever you purchase goods, it is a purchases account. Whenever you sell the goods, it is sales account. But in equation, purchase and sale of goods is adjusted in the stock. Purchase and sale of goods is adjusted in a stock. Asset side पे. Whenever you purchase or sell any fixed asset, it is fixed asset account only. Purchase and sale account नहीं होते. Whenever you say purchase account, it is for the purchase of goods only and not purchase of fixed asset. Whenever you say sales account, right, it is related to sales of goods and not sales of fixed asset. Fixed asset is always and always represented by only one account. गुड्स के अलग अलग अकाउंट रहते हैं, परचेस एंड सेल. गुड्स के 2 अकाउंट्स रहते हैं, परचेस एंड सेल. फिक्स एसेट का एक ही अकाउंट रहता है, परचेस करो या सेल करो, इट इज फिक्स एसेट. इफ यू परचेस, फिक्स एसेट विल इंक्रीज डेबिट. इफ यू सेल, फिक्स एसेट्स विल डिक्रीज क्रेडिट. ठीक है, सो अब देखते हैं फर्स्ट. हाँ, गुड्स परचेस्ड ऑन कैश. अकाउंट्स इन्वॉल्व इज परचेसेस ऑफ गुड्स, इसलिए परचेस अकाउंट. कैश पे परचेस किया इसलिए कैश अकाउंट. गुड्स परचेस के लिए परचेस अकाउंट,
कैश पे किया इसलिए कैश अकाउंट. परचेस इज एक्सपेंस और असेट, आपको जो बोलना है बोलो. कैश इज असेट. Purchases expense or stock increases debit, right? Cash decreases credit. Therefore your accounting entries, purchases account debit to cash account credit. How much? Purchase account debit to cash 20,000, 20,000. Purchase account debit to cash 20,000, 20,000. आगे ठीक है. नेक्स्ट परचेस टू कैश. सेकंड इक्वेशन मैं यहां पे लिखता हूं, या अलग लिख देता हूं, इधर लिखता हूं. Asset is equal to capital plus liability. The first, you purchase goods of rupees 20,000, तो 20,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गया. स्टॉक इंक्रीज हो गया एंड 20,000 से कैश कम हो गई. नो चेंज इन द कैपिटल. नो चेंज इन द कैपिटल. 20,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गया, 20,000 से कैश चेंज हो गई, कम हो गई. कोई एक्सपेंस इनकम नहीं है जो कैपिटल में चेंज होगा. हमने पेड किया इसलिए लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी में चेंज नहीं होगा. सेकंड ठीक है. अब ध्यान देना. गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट 30,000. परचेसेस है ऑफ गुड्स है इसलिए परचेस अकाउंट. एक्सपेंस बोलो या असेट बोलो, इंक्रीजेस डेबिट. क्रेडिट पे किया है, सो हैव दे गिवन यू नेम ऑफ द पार्टी? नो. तो आई विल से क्रेडिटर अकाउंट. ठीक है. अब यहां पे नाम नहीं लिया है, लिखो फ्रॉम एक्स. परचेस गुड्स फ्रॉम एक्स, तो भी किसका अकाउंट आएगा? एक्स. एक्स बिकम्स माई लाइबिलिटी. मुझे उसको 30,000 पे करने हैं. लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट. वो मेरा क्रेडिटर बन गया. वो मेरा कौन बन गया? क्रेडिटर. एक्सपेंसेस इंक्रीजेस डेबिट. परचेसेस अकाउंट डेबिट 30,000. एक्स बिकम्स माई क्रेडिटर. जब वो क्रेडिटर बनेगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा. अगर कोई आपका क्रेडिटर बनता है तो उसको क्रेडिट करो. कोई डेटर बनता है उसको डेबिट करो. डेटर कम होंगे क्रेडिट करो, क्रेडिटर्स कम होंगे डेबिट करो. उल्टा. कोई क्रेडिटर कब बनता है? जब हम उससे गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते हैं तब वो क्रेडिटर बनते हैं. उसको क्रेडिट करेंगे, बोलेंगे तू क्रेडिटर है मैं क्रेडिट कर रहा हूं तुझे. कोई डेटर कब बनता है? जब हम उसको सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो तू डेटर बन गया, अब मैं तुझे डेबिट करूंगा. ऐसे एनालॉजी है. क्या बोला? ध्यान देना. तू मेरा क्रेडिटर बन चुका है, मैं तुझे क्रेडिट कर रहा हूं. तू मेरा डेटर बन चुका है, मैं तुझे डेबिट कर रहा हूं. ठीक है. ऐसे इक्वेशन में 30,000 का ट्रांजैक्शन है. 30,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गया. एवरी ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट, सो डोंट वरी एट ऑल. एंड कैश तो कुछ कम नहीं हुई है, कैपिटल भी कुछ चेंज नहीं हुआ है. 30,000 की क्रेडिटर्स बन गए, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई. राइट. 30,000 का मेरा क्रेडिटर इंक्रीज हो गया. ठीक है. आगे नेक्स्ट थर्ड. डन. डन. गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 15,000 एट 25,000 ऑन कैश. 20,000 के गुड्स 25 में सेल के कैश पे. कस्टमर आया, उसने हमें 25,000 दिए और हमने उसको 20,000 के गुड्स 25 के बोल के दे दिए. हम उसको कॉस्ट नहीं बोलेंगे, नहीं तो वो क्यों 25 देगा हमें. हम उसको बोलेंगे 25,000 के, इसलिए वो 25 देगा. इसमें हमने 5,000 का प्रॉफिट कमाया है. बट एंट्री करते टाइम, जर्नल एंट्री करते टाइम प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड किया जाता. हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं 25 पे. बट इक्वेशन करते टाइम प्रॉफिट लॉस तुरंत रिकॉर्ड किया जाएगा. सो राइट.
कैश अकाउंट, कैश सेल है इसलिए कैश अकाउंट, कैश आ गई हमारे पास, कैश इंक्रीजेस, डेबिट। सेल हुआ है, गुड सेल हुआ इसलिए सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट इज इनकम, इंक्रीजेस, क्रेडिट। And the sale of goods transaction is recorded at selling price. Debit the account, कैश अकाउंट डेबिट करना है, कितने पे? लेट मी चेक, 25,000. कैश कम्स इन, डेबिट 25,000 टू सेल्स 25. एंट्री में प्रॉफिट लॉस अलग से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अपने आप हो जाता है, डोंट वरी। अकाउंटिंग ऐसे होती है कि ये प्रॉफिट लॉस अपने आप एट द एंड ऑफ द ईयर पता चल जाएगा, बट इक्वेशन अपने आप नहीं करता। इक्वेशन को हमें खुद होके प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखाना होता है। इक्वेशन में हमने एंट्री में ना, एंट्री में इसका कोई फायदा नहीं। जब एंट्री करते हो ना, ये 15,000 का कोई रिलेवेंस नहीं एंट्री करते टाइम, जनरल एंट्री। बट इक्वेशन में इस 25,000 का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? बिकॉज इक्वेशन में हमें प्रॉफिट लॉस तुरंत दिखाना होता है, ठीक है। सो बहुत बार खाली एंट्री के क्वेश्चन रहेंगे ना, इक्वेशन के नहीं रहेंगे, एंट्री के रहेंगे ना, वो आपको 15,000 बोलेंगे नहीं, बोलेंगे गुड्स सोल्ड एट 25,000 ऑन कैश, बस नहीं बोलेंगे, बिकॉज एंट्री के टाइम उस कॉस्ट का कोई फायदा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन में अगर एंट्री पूछा है ना, तो इस 15,000 का कोई यूज नहीं, इस 27,000 का कोई यूज नहीं गुड्स के लिए। बिकॉज एंट्री में हम गुड्स जब सेल होते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो डायरेक्टली सेल्स में लिख देते हैं, और बाद में परचेस माइनस सेल्स या सेल्स माइनस परचेस प्रॉफिट लॉस पता चलता है एट द एंड ऑफ द ईयर। आगे नेक्स्ट, ठीक है। सो कैश इंक्रीजेस बाय 25,000, स्टॉक 15,000 का 25 पे गया, तो इक्वेशन में क्या आएगा, ध्यान देना। कैश इंक्रीज्ड, asset increased by 25,000, stock decreased by 15,000, stock decreased by 15,000 15,000 का स्टॉक गया, उसके बदले 25,000 आ गए, मतलब उस पर 10,000 का प्रॉफिट है। इंक्रीज इन प्रॉफिट इज इंक्रीज इन कैपिटल, नो चेंज इन द लायबिलिटी। प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गया। यही फर्क है, मैंने आपको बोला इक्वेशन में परचेस एंड सेल, एंट्री एंड इक्वेशन में कहां पे फर्क है? एक इनकम एंड एक्सपेंसेस में। एंट्री में इनकम एक्सपेंस अकाउंट अलग होते हैं, एंट्री में इनकम एक्सपेंस अकाउंट अलग होते हैं, बट इक्वेशन में इनकम एक्सपेंस कैपिटल में इनकम ऐड हो गए, एक्सपेंस कैपिटल से माइनस हो गए, दैट इज वन डिफरेंस। एंड दूसरा होता है गुड्स के रिलेटेड, एंट्री में परचेस अकाउंट अलग, सेल्स अकाउंट अलग, प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली नहीं निकालते हम, इक्वेशन में हम प्रॉफिट लॉस तुरंत निकालते हैं। दैट ओनली दो डिफरेंस है एंट्री एंड इक्वेशन में, बाकी सब सेम है। आगे यहां पे लिखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 27,000 एड 40,000 क्रेडिट टू वाई, टू वाई। हमने वाई को सेल किया, 40,000 पे सेल किया, तो वाई से कितना लेना है? 40। वाई तू मेरा डेटर हो गया। देखो मैं वाई से, मेरा डिस्कशन क्या है, वाई यू आर माई डेटर, तू मेरा डेटर बन गया। क्यों? बिकॉज मैंने तुझे गुड सेल किए क्रेडिट पे, तू डेटर बन गया, मतलब तू डेबिट हो गया। वाई अकाउंट डेबिट, तू असेट बन गया, इंक्रीज डेबिट। क्यों बना? बिकॉज हमने उसको सेल किया है। इनकम इंक्रीज क्रेडिट, जितना सेल करोगे उतनी इनकम होगी, क्रेडिट होगी। एंट्री, वाई डेटर बन गया इस ट्रांजैक्शन की वजह से, इसलिए वाई को डेबिट कर रहे हो। टू सेल्स एट इज सेलिंग प्राइस 40, इसमें प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड किया क्या? नहीं, अपने आप हो जाता है, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द ईयर, जो लास्ट चैप्टर में समझेगा, ठीक है। सो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डायरेक्टली सेल प्राइस में एंट्री आ गई। इक्वेशन में, इक्वेशन में क्या दिखेगा? वहां पे प्रॉफिट लॉस अलग से, 20,000 का स्टॉक कम होगा, 13,000 का प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। सो नंबर 4, स्टॉक ऑफ 27,000 डिक्रीज, उस
एंड उसके बदले डेटर्स आ गए 40,000 के, 40,000 के डेटर्स इंक्रीज हो गए, डेटर्स आर असेट, असेट इंक्रीज हो गए 40 के, 13,000 का प्रॉफिट है जो इसमें ऐड होगा. दिस इज द डिफरेंस इन एंट्री एंड इक्वेशन फॉर गुड्स परचेस एंड गुड्स सोल्ड, फॉर गुड्स परचेस्ड एंड गुड्स सोल्ड. ठीक है, आगे नेक्स्ट. जब मैंने वाई से गुड्स परचेस किए थे क्रेडिट पे, जब मैंने वाई से गुड्स परचेस किए थे क्रेडिट पे, तो वाई को बोला तू मेरा क्रेडिटर हो गया, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया. क्रेडिटर को क्रेडिट किया जाता है. जब मैंने वाई को गुड्स सेल किए डेबिट क्रेडिट पे, वाई मेरा डेटर हो गया, तो मैंने वाई को बोला तू मेरा डेटर है, इसलिए मैंने डेबिट किया. क्रेडिटर को क्रेडिट करो, डेटर को डेबिट करो, सिंपल. जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, आप आपके रूल्स बनाते जाओगे, पता है, वही समझ लेना. कीप इवॉल्विंग योर सेल्फ, कीप थिंकिंग ऑन द ट्रांजेक्शन. ठीक है, आगे हमने मशीनरी परचेस की ऑन कैश 1 लाख. गए सेलर के पास, सेलर को 1 लाख दिए और मशीनरी लेके आ गए. मशीनरी द फिक्स असेट, नॉट परचेस अकाउंट. इट इज अ फिक्स असेट अकाउंट, इट इज असेट अकाउंट, because the machinery will be used for more than 1 year, so it is a machinery account. ठीक है, so चलो लिखो, machinery comes in debit, machinery asset increase debit. जब गुड्स परचेस किए परचेस डेबिट, मशीनरी परचेस की मशीनरी डेबिट, व्हीकल परचेस की व्हीकल डेबिट, लैंड परचेस करोगे लैंड डेबिट. सो व्हेन यू परचेस पर्टिकुलर फिक्स असेट, यूज दैट असेट. जब आप गुड्स परचेस करोगे यूज परचेस अकाउंट, बाकी कोई भी परचेस करो यूज दैट अकाउंट. इफ यू परचेस स्टेशनरी, इट इज स्टेशनरी अकाउंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू परचेस पोस्टल स्टैम्प्स, आपको कुरियर करने इसलिए आपने स्टैम्प्स परचेस किए, पोस्टेज अकाउंट डेबिट या पोस्टल स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट. You purchase land, land account. You purchase computer, computer account. You purchase electronic equipments, electronic equipment account. But you purchase goods, purchases account. ठीक है, 1 लाख की मशीनरी परचेस की, हमने कैश दे दी, तो क्रेडिटर बनेगा कोई नहीं, कैश चली गई है. उसको बोला भाई तू मेरा क्रेडिटर ने पे किया है, देख 1 लाख ले. उसको 2 बार बोलेंगे 1 लाख दिया चुकता किया है, ऐसे. So machinery increases debit, मशीनरी इंक्रीजेस डेबिट, मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा. आपको एमडेस्कली नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना होगा मशीनरी. मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं. तो कैश गोज आउट क्रेडिट, कितना 1 लाख, मतलब कैश गई 1 लाख की, उसके बदले मशीनरी आ गई. आप मोबाइल लेते हो, आपने 20,000 का मोबाइल लिया, तो आपने 20,000 दिए और मोबाइल आ गया. सो मोबाइल कम्स इन, मोबाइल इंक्रीजेस, असेट इंक्रीजेस डेबिट, कैश गोज आउट, कैश डिक्रीजेस क्रेडिट. जो चली गई क्रेडिट, जो आ गई डेबिट. ठीक है, सो कैश गई और मशीनरी आ गई. इक्वेशन में बोथ आर असेट्स. मशीनरी इंक्रीजेस 1 लाख, कैश इन डिक्रीजेस 1 लाख. कैश गई और मशीनरी आ गई. नो चेंज इन द कैपिटल, बिकॉज प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है. परचेस पे किधर का प्रॉफिट लॉस रहेगा, सेल पे प्रॉफिट लॉस रहेगा. कुछ भी सेल करो उसमें प्रॉफिट लॉस रह सकता है. क्रेडिट पे नहीं है, इसलिए क्रेडिटर नहीं है. क्रेडिट पे नहीं है, कोई बोलेगा सर राइट, मैंने माना है कि एवरी ट्रांजैक्शन डिफरेंट ट्रांजैक्शन, सो डोंट कंपेयर विद द प्रीवियस ट्रांजैक्शन, की उसका रिलेशन पहले किधर है, नहीं है. ठीक है, आगे देन 6. सो कैश पे परचेस करो तो कैश गोज आउट, कैश देनी पड़ेगी, कैश कम होगी क्रेडिट. मशीनरी कम्स इन, मशीनरी इंक्रीजेस डेबिट. ठीक है, आगे आप फर्नीचर डीलर के पास गए, उसको बोला हमें फर्नीचर चाहिए ऑफिस के लिए, ऑफिस यूज के लिए चाहिए, मशीनरी ऑफिस यूज के लिए चाहिए. हम राइट, हम उसमें हमारा गुड्स नहीं है, वो फिक्स एसेट है. फर्नीचर परचेस फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम पी. पी के पास गए और बोला हमें फर्नीचर चाहिए 50,000 का.
उसको बोला फर्नीचर चाहिए, सोफा वगैरह चाहिए, टेबल वगैरह चाहिए, क्लाइंट आएंगे उनको बैठने के लिए वगैरह, हमारा रिसेप्शन रहेगा वहां पे, हमें टेबल वगैरह चाहिए, हमें फर्नीचर। वो बोलता है ये 50,000 का सेट है। तो हमने वो फर्नीचर लेके आ गए, हम उसको सालों साल यूज करने वाले, इट इज असेट, इट इज नॉट गुड्स, इट इज असेट। अगर हम उसको सेल करने वाले मतलब फर्नीचर डीलर है तो गुड्स, तो परचेस अकाउंट। बट हम फर्नीचर डीलर नहीं है, हमने वो फर्नीचर परचेस किया है, राइट, सो दैट वी कैन यूज इट। सर कहां से पता चला? अगर वहां पे लिखा होता, अगर ये गुड्स होते तो वो फर्नीचर नहीं लिखते, गुड्स परचेस लिखते। क्लिक होना चाहिए। फर्नीचर परचेस इतना स्पेसिफिक लिखा है, मतलब ये फिक्स असेट है। फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट रुपीज 50,000 फ्रॉम पी। पी के पास गए, बोले हमें फर्नीचर चाहिए, बोला 50,000 का है, तो फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर इंक्रीजेस डेबिट, असेट आगे डेबिट। बट हमने उसको पेड नहीं किया, कैश नहीं दिया। तू मेरा क्रेडिटर हो गया, मैं पी को बोल रहा हूँ तू मेरा क्रेडिटर है। बोलता क्यों? बिकॉज मुझे तुझे 50,000 पे करना है, तू मेरा क्रेडिटर है, मैं तुझे क्रेडिट करूंगा। जब वो क्रेडिट, पहले पी क्रेडिटर था क्या? नहीं, अब क्रेडिटर बन गया तो उसको क्रेडिट करो। सो पी बन गया मेरा क्रेडिटर, मैं उसको क्रेडिट करूंगा। तो मेरे बुक्स में एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पी। लेट्स स्टार्ट 6। फर्नीचर इंक्रीजेस कम्स इन डेबिट, असेट इंक्रीजेस डेबिट। अगर मैंने कैश दी होती, कैश गोज आउट क्रेडिट। चेक दिया होता तो बैंक अकाउंट, जहां जहां पे कैश है यू कैन रिप्लेस इट बाय बैंक का, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश एंड बैंक सेम होता है, राइट। बट हमने उसको पेड नहीं किया, तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया, लाइबिलिटी हो गई, इंक्रीज हो गई क्रेडिट। हमने फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर कम्स इन डेबिट, डेबिट। कितने का फर्नीचर लिया हमने? 50,000। जब कोई बंदा क्रेडिटर होता है आपका, अगर कोई क्रेडिटर होता है तो उसको क्रेडिट करो, पी इज क्रेडिटर, उसको 50,000 देने। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं। कोई डेटर हो गया, उसको डेबिट करो, कोई क्रेडिटर हो गया, उसको क्रेडिट करो। जब डेटर पैसा देगा, वो बोलेगा अब मैं डेटर नहीं है तुम्हारा, उसने पैसे दिए, तो हम बोलेंगे भाई तूने पैसे दिए, अब तू डेटर नहीं। तू डेटर नहीं मतलब तुझे क्रेडिट करना होगा। हमने हमारे क्रेडिटर को पैसे दिए, उसको बोलेंगे भाई अब तू क्रेडिटर नहीं, अब तुझे पेमेंट कर दिया, तू क्रेडिटर नहीं मतलब डेबिट, उल्टा रिवर्स करना है उसको, इसका मतलब। ठीक है, आगे चीजों पे सोचो। ठीक है, आगे आगे इक्वेशन में फर्नीचर परचेस किया, फिक्स असेट इंक्रीज हो गई 50,000 की। ठीक है, अगर कैश दी होती तो कैश कम होता, बट हमने क्रेडिट पे परचेस किया है तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिटर। वो कौन हो गया? हमारा क्रेडिटर। वो हमारा कौन हो गया? क्रेडिटर। कौन हो गया? क्रेडिटर। आगे क्रेडिटर हुआ इसलिए क्रेडिट। ठीक है, जब इस पी को जब हम पे करेंगे ना 50,000, कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा 50,000 पी को। जब पी को हम 50,000 देंगे ना कैश या चेक, तो बोलेंगे भाई अब तू क्रेडिटर नहीं, तब उसको डेबिट मारेंगे, पी को डेबिट मारेंगे, बिकॉज लाइबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट मारेंगे। पी क्रेडिटर नहीं रहेगा, इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा, एंड हमारी कैश जाएगी, बैंक बैलेंस कम होगा, असेट कम होगी, क्रेडिट की जाएगी। सो पी टू कैश एंट्री आएगी। देन नंबर 7, लैंड ऑफ रुपीज 10 lakhs सोल्ड एट रुपीज 50 lakhs ऑन कैश। यहाँ पे प्रॉफिट है। 10 लाख की लैंड 50 lakhs में सेल हो गई, 10 लाख की लैंड 50 lakhs में सेल हो गई। यू हैव टू यूज लैंड अकाउंट, नॉट सेल्स अकाउंट। भले ही सेल है, बट इट इज सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, नॉट सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स पे सेल्स अकाउंट यूज करना है। फिक्स असेट सेल होगी तो फिक्स असेट ही अकाउंट यूज करना है। ऑलवेज रिमेंबर, फॉर फिक्स असेट वेदर यू परचेस और सेल, ओनली एंड ओनली अकाउंट दैट इज फिक्स असेट, बिकॉज फिक्स असेट डेली परचेस नहीं होते, डेली सेल नहीं होते, कभी कभार एक आधे बार होते। गुड्स परचेस एंड सेल डेली बेसिस होता है, बिकॉज वो हमारा धंधा है। फिक्स असेट हम कभी कभार 4-5 साल में एक आधे बार परचेस करेंगे, कभी कभार सेल करेंगे। सो दे आर नॉट रूटीन ट्रांजैक्शन, नॉट रिकरिंग ट्रांजैक्शन, इसलिए उनका एक ही अकाउंट रहेगा, फिक्स असेट। ठीक है, सो लिख ली। सो हमने 10 लाख की लैंड 50 lakhs में सेल की। ध्यान देना, हमने 10 लाख की लैंड 50 lakhs में सेल की। मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे खींचता हूँ, मेरे पास स्पेस है।
आई कैन एडजस्ट इट. हाँ, मुझे 50 lakhs की कैश आ गई. कैश इंक्रीजेस, असेट इंक्रीजेस, डेबिट. कैश कम्स इन, 50 लाख आ गए. ठीक है. लैंड गोज आउट, लैंड डिक्रीज हो गई. अब लैंड मेरी नहीं रहेगी, उसकी हो जाएगी. लैंड असेट डिक्रीजेस, क्रेडिट. एंड देयर द प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड अकाउंट is income, profit is income, increases credit. जब गुड सेल किए तब एंट्री में प्रॉफिट अकाउंट या लॉस अकाउंट यूज नहीं किया, जो भी है वो सेल्स अकाउंट. बट जब फिक्स एसेट सेल होगी, इफ देयर इज अ प्रॉफिट वी विल रिकॉर्ड द प्रॉफिट इंस्टेंटली. इफ देयर इज अ लॉस वी विल रिकॉर्ड द लॉस इंस्टेंटली. रीजन, बिकॉज गुड्स के केस में प्रॉफिट कैसे पता चलता है? सेल्स माइनस परचेस. गुड्स के दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है सेल्स जो सेलिंग प्राइस पे रहता है, दूसरा होता है परचेज जो कॉस्ट प्राइस पे रहता है. दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट होता है. बट लैंड के लिए परचेस करो या सेल करो एक ही अकाउंट है. परचेस करोगे तो भी लैंड, सेल करोगे तो भी लैंड. तो उसके लिए माइनस करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम तुरंत क्या करते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं. तो ध्यान देना, कैश कम्स इन, कैश इंक्रीजेस डेबिट. कितनी कैश मिली हमें? 50 लाख. कितनी कैश मिली? 50 lakhs. टू, क्रेडिट को टू, लैंड. कितने की लैंड डिक्रीज हो गई? 10 लाख की. कितने की लैंड डिक्रीज हो गई? कितने की लैंड चली गई? 10 लाख की लैंड चली गई. इंटी टैली नहीं होगी. डेबिट इज 50 lakhs, क्रेडिट इज 10 lakhs. तो अभी भी 40 lakhs बाकी है टैली करने के लिए. डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, दैट इज टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड. टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड. टैली होनी चाहिए एंट्री. 10 लाख की लैंड 50 में सेल हो गई, 40 का प्रॉफिट आ गया. मैथमेटिकली आप निकालते हो सर, 10 लाख की लैंड 50 में सेल हो गई तो 40 लाख का प्रॉफिट आ गया. अब मैं एंट्री सिखा रहा हूं. ठीक है, 50 लाख कैश आ गई, 10 लाख की लैंड चली गई, 40 lakhs प्रॉफिट है, वो कैपिटल इंक्रीज करेगा. ठीक है. सो इक्वेशन में कैसे लिखोगे? ध्यान देना, स्टॉक जैसे लिखोगे. कितने की लैंड कम हो गई? नंबर 7, 10 लाख की लैंड कम हो गई. 10 लाख की लैंड असेट्स कम हो गई. सेल की ना, अब आपकी लैंड नहीं होगी, उसकी हो गई भाई. कितनी कैश आ गई? 50 लाख. 50 लाख कैश आ गए. 40 lakhs is profit. Profit will increase the capital. Always remember, profit will increase the capital in equation, loss will decrease the capital in equation. ठीक है. मैं जानबूझ के परचेस का ट्रांजैक्शन लेके समझाया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन परचेसेस, गुड्स एंड फिक्स एसेट. डिफरेंस गुड्स एंड फिक्स एसेट वो मुझे समझाना है. एंड द एट्थ एट्थ क्या? एट्थ, vehicle of rupees 6 lakhs sold at rupees 2 lakhs on credit to Q. टू क्यू. क्यू हमारे पास है, बोलता है यार मुझे व्हीकल, सेकंड हैंड व्हीकल चाहिए. बोलता हूँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास व्हीकल है, राइट. उसकी प्राइस हम दोनों में डिसाइड हो गए कितने पे? 2 लाख. मेरे वो मैंने 6 lakhs में ली थी, मैंने यूज की होगी, मैंने उसको 2 लाख में बेच दी. इससे कितने बार होता है? यू ऑल्सो नो, दिस इज वेरी कॉमन ट्रांजेक्शन. लैंड प्रॉफिट पे सेल होगी, फ्लैट्स प्रॉफिट पे जनरली सेल होते हैं, बट व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स ये लॉस पे सेल होते हैं. ठीक है. क्यों होते हैं? मतलब ये नॉर्मल यार, आप भी रहोगे तो भी जो 10 साल पहले की व्हीकल आप कॉस्ट प्राइस पे थोड़ी लोगे. कॉमन सेंस है ना. सो व्हीकल ऑफ रुपीज 6 lakhs सोल्ड एट रुपीज 2 lakhs ऑन क्रेडिट टू एक्स. क्यों आया? क्यों बोलता है मुझे व्हीकल चाहिए, बोलते ले. मैं बोलता हूँ 2 लाख डिसाइड हो गया. बोलते 2 लाख दे, बोलता है नहीं क्रेडिट पे देता हूँ बाद में पैसे.
तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई क्यों तू मेरा कौन हो गया, डेटर हो गया, मुझे तुझे 2 लाख लेने, मैंने तुझे सेल किया क्रेडिट पे, तो तू मेरा कौन हो गया, डेटर। तो क्यों डेटर हो गया डेटर, तो उसको डेबिट करना होगा। सोचो कैसे, क्यों हो गया डेटर, उसको डेबिट करो। क्यू से पैसे लेने, वो डेटर हो गया, डेटर इंक्रीज हो गया, डेबिट ही। एंड व्हीकल ऑफ 6 lakhs गोज आउट फॉर रुपीज 2 lakhs, लॉस ऑफ 4 lakhs। ठीक है, लॉस ऑफ 4 lakhs। देन मैडम कुछ गलत लिखा है मैंने? नहीं, क्या पूछा है, व्हाट इज द क्वेश्चन मैडम? एक सेकंड, लेट मी चेक। सो प्रॉफिट शुड बी 50 lakhs, हाउ इट कैन बी? मैडम 10 लाख की लैंड थी, तूने 50 में सेल की। 10 लाख की लैंड अगर तू 50 में सेल करती है तो प्रॉफिट कितना हो गया? तूने परचेस की थी 10 लाख पे, परचेस पहले कभी हुआ था, 10 साल पहले, 15 साल पहले, जो कुछ भी है, तूने 10 लाख पे लिया था। तू बोले कि सर इधर परचेस की एंट्री नहीं है, मैंने बोला है एवरी ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट। इसके पहले भी कोई ट्रांजैक्शन हुए होंगे जो मैं मुझे पता नहीं है। मेरे पास 10 लाख की लैंड थी, मैंने परचेस की थी 10 लाख पे कुछ साल पहले, मैंने 50 lakhs पे सेल किया। तो सेल किया तो 50 लाख मिले, परचेस किए तो 10 लाख दिए थे, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 40 lakhs हो गया ना। आई डोंट नो, ये कैसे तूने ये कैसे बोल रही, तो आई डिडंट गेट यू। प्रॉफिट शुड बी 50 lakhs, हाउ इट कैन बी 40 lakhs? ध्यान देना, मेरे पास लैंड है जिसकी मेरी प्राइस 10 लाख की है, मैंने 10 लाख में परचेस किया था, और मैं, राइट, ये मैंने 20 साल पहले परचेस किया था, सपोज बिफोर। आज मैं इसको सेल करता हूं, मैंने सेल किया 50 लाख पे, दिस इज माई सेलिंग प्राइस, दिस इज माई कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 50 lakhs माइनस 10 lakhs, विच इज इक्वल टू 40 lakhs। इंट्री लिखते टाइम कुछ गलत लिखा है क्या, ऐसे है तो बोलो। नहीं, इंट्री लिखते टाइम भी बराबर है। अरे श्रुतिका मैडम समझा या नहीं समझा? श्रुतिका, अरे मानसी किधर है, मानसी, मानसी देवकर है क्या? मानसी, आवाज आ रही ना? हाँ, मैंने वो देखा नहीं था तेरा। आगे, नेक्स्ट, हमने पहले कभी परचेस की होगी, इसलिए आगे। सो क्यू बन गया मेरा डेटर, क्यू से मुझे 2 लाख लेने हैं, क्यू से मुझे 2 लाख लेने हैं। तो अगर मुझे उससे 2 लाख लेने हैं, मुझे अगर उससे 2 लाख लेने हैं, तो मेरा 2 लाख का डेटर बन गया, कौन, क्यू। तो मुझे उसको डेबिट करूंगा, बट 4 लाख का लॉस हुआ है, तो देखो क्या होगा, कौन कौन से अकाउंट आएंगे। अगर कैश आती तो कैश आता, राइट, बट कैश नहीं है, डेटर है, क्यू इज माई डेटर, क्यू अकाउंट असेट इंक्रीजेस डेबिट, डेटर बन गया तो उसको डेबिट किया जाएगा, डेटर बन गया तो उसको डेबिट किया जाएगा। आगे, ठीक है, क्यू बन गया मेरा डेटर। आगे, व्हीकल गोज आउट, व्हीकल बाहर गई, सेल हो गई, क्रेडिट, इसमें मेरा लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल, लॉस इज एक्सपेंस, इंक्रीज हो गया, डेबिट। मैं इंट्री कैसे लिखता हूं, ध्यान देना, कैश नहीं आएगी, क्यू बन गया डेटर, क्यू बन गया डेटर, डेटर बन गया तो उसको डेबिट करो, कितने का डेटर बन गया, 2 लाख, उससे 2 लाख लेने। व्हीकल गोज आउट टू व्हीकल, कितने की व्हीकल सेल हो गई, 6 लाख की व्हीकल सेल हो गई, क्रेडिट, 2 लाख पे सेल हो गई, क्रेडिट इज 6 lakhs, डेबिट इज 2 lakhs, सो मिसिंग डेबिट इज 4 lakhs। वो क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल। Q account debit 2 lakhs, loss on sale of vehicle account debit 4 lakhs,
to vehicle goes out 6 lakhs. Losses are debited, incomes are credited. कभी भी लॉस होगा तो उसको डेबिट किया जाएगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट किया जाएगा. Expenses and losses are debited, incomes and gains are credited. ठीक है. अच्छा, अभी किसी को डाउट है? अभी जो 8 ट्रांजैक्शन किए इसमें किसी को डाउट है? एनीवन हैज डाउट? सो हमेशा याद रखना, फिक्स असेट अलग एंड गुड्स अलग. गुड्स के लिए दो अकाउंट्स रहेंगे, परचेस सेल. परचेस करोगे तो परचेस एट कॉस्ट प्राइस, सेल करोगे तो सेल्स एट सेलिंग प्राइस. बट इक्वेशन में हम प्रॉफिट लॉस तुरंत दिखाते हैं, इंट्री में प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाते, इक्वेशन में दिखाते हैं. फिक्स असेट परचेस करोगे तो फिक्स असेट अकाउंट रहेगा, सेल करोगे तो भी फिक्स असेट अकाउंट रहेगा. इंट्री में भी प्रॉफिट लॉस तुरंत दिखाया जाएगा. प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट क्रिएट होगा, लॉस होगा तो लॉस डेबिट होगा. बिकॉज expenses and losses are debited, incomes and profits are credited. एक्सपेंसेस मैंने बोला 19% एक्सपेंसेस इंक्रीज ही होते हैं, लॉसेस इंक्रीज ही होते हैं, इनकम्स इंक्रीज होते, राइट. प्रॉफिट्स एंड इनकम्स इंक्रीज होते जाएंगे. इनकम्स एंड देखो क्या, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स इंक्रीज होते जाएंगे पूरे साल. एक्सपेंस लॉस से इंक्रीज होते जाएंगे और एट द एंड हम दोनों माइनस करेंगे, हमें प्रॉफिट पता चलेगा. तो हम पूरे साल कितने इनकम हुए वो ढूंढते बैठेंगे, कितने एक्सपेंस हुए वो ढूंढते बैठेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस प्रॉफिट. दो टैंक है, इनकम का टैंक है, एक्सपेंस का टैंक है, वो भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, मतलब वो इंक्रीज होते जाएंगे. और एट द एंड हम टोटल इनकम देखेंगे कितनी है, टोटल एक्सपेंस कितनी देखेंगे, और दोनों का माइनस करके हमें प्रॉफिट पता चलेगा. एज सिंपल एज दैट. सो इसलिए बोला जाता है इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर 19% इंक्रीज होंगे, इसलिए उनको क्रेडिट किया जाता है. एक्सपेंस एंड लॉसेस 19% इंक्रीज होते हैं, इसलिए उनको डेबिट किया जाता है. ठीक है. ओके, एक सेकंड. हाँ, आगे. आगे. और असेट परचेस के ट्रांजैक्शंस आर वेरी रियर ट्रांजैक्शन, बिकॉज यू डोंट परचेस असेट टू सेल, यू परचेस फॉर यूज. तो वो बहुत रियर ट्रांजैक्शंस होंगे. व्हाट इज द रूटीन ट्रांजैक्शन? परचेस ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स. ठीक है. आगे नेक्स्ट. चलो अब थोड़े क्वेश्चन देखते हैं टेक्स्ट बुक के. लेट मी चेक द टेक्स्ट बुक. हमने ये क्वेश्चन किया था, उसके बाद डू योर टेक्स्ट बुक. अच्छा, किसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है? जिसके पास नहीं है, अच्छा, अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑफ 8 इज रिमेनिंग. ओ सॉरी, लिखो. सिक्स लैक्स की व्हीकल सेल हो गई, असेट डिक्रीज बाय 6 lakhs. 2 लाख कैश आ गए, कैश इंक्रीज, असेट इंक्रीज. 4 lakhs का प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, कैपिटल से माइनस होगा. नो चेंज इन द लाइबिलिटी. लेफ्ट हैंड साइड इज डिक्रीज बाय 4 lakhs, राइट हैंड साइड डिक्रीज बाय 4 lakhs. इक्वेशन अपने आप क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा. दोनों साइड 4 लाख से कम हो गए नेट. लिखो. अच्छा, किनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है? सिंसियरली रेज द हैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंसियरली रेज द हैंड. किनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है? अच्छा करण, तेरे पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन करण यू हैव टू बाय इट. करण यू हैव टू बाय इट. ठीक है. अरे दुकान में जाओ ले लो. ठीक है. बिकॉज आगे से हम टेक्स्ट बुक यूज करेंगे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आजकल जाके लेके आ जाओ. इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो ऑर्डर, अगर अमेजोन पे होता है तो देखो अमेजोन से भी परचेज कर सकते हो, आई डोंट नो. सो
देखो या हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वी विल डू द क्वेश्चन नंबर दिस, एवरीवन। आपके लिए पेज नंबर है 25। जिनके पास टेक्स्ट बुक है, ओपन द टेक्स्ट बुक। यस, ठीक है। सो देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन साइन टू एस्पेक्ट, टू एस्पेक्ट मतलब डेबिट कौन सा, क्रेडिट कौन सा, टू अकाउंट्स, ठीक है। वो दो अकाउंट्स कौन से हैं? क्लासिफाई द अकाउंट्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। वो टेबल जाने दो, अब अपना करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बोलो कौन से दो अकाउंट्स रहेंगे, टाइप इट। कौन से दो अकाउंट्स रहेंगे? अच्छा एक मिनट, मैं किसी को है ना ये करता हूं। हु कैन गिव मी द आंसर, हु कैन गिव मी द आंसर, रेज द हैंड, एनीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके लेट मी चेक। यस आई हैव, राइट, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ चलो हाँ सर। करना है, ठीक है। हाँ पहले बोल, विच आर द टू अकाउंट्स? हाँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकाउंट, फर्स्ट कैश अकाउंट एंड सेकंड कैपिटल अकाउंट। गुड, कैश अकाउंट बोल। टाइप्स ऑफ अकाउंट, कैश इज asset, liability, income, expense. Cash is which account? हाँ बोल ना। कैश इज एसेट अकाउंट। परफेक्ट, गुड। कैश इज असेट, प्रॉपर्टी, हाँ। एंड कैपिटल इज, बिजनेस का क्या रहेगा कैपिटल? कैपिटल इज लाइबिलिटी। परफेक्ट, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। अच्छा, लाइबिलिटी। कैश इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? कैश इंक्रीज है, डिक्रीज बिजनेस में? कैश इंक्रीज। गुड। एंड लाइबिलिटी? इंक्रीज। परफेक्ट। सो डिक्रीज। नहीं नहीं, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? व्हाट? सॉरी, इंक्रीज इंक्रीज। हाँ इंक्रीज। अच्छा, असेट हाँ, इंक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज, सॉरी। डेबिट क्रेडिट? asset increase, डेबिट। yeah perfect, increase in asset is debit, perfect, हाँ। and liability increase, क्रेडिट। एक डेबिट है, दूसरा क्या रहेगा, क्रेडिट। सो इट इज कैश अकाउंट डेबिट, बराबर ना। एंट्री क्या लिखेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना, 50,000, राइट? 50, हाँ। गुड। सेकंड इक्वेशन करते हैं, मैं यहाँ पे नीचे इक्वेशन लिखता हूँ, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैन यू हेल्प मी आउट? फर्स्ट क्या होगा बोल, या ये वाला एक्चुअली ये एक्शन रहता है। हाँ बोलो, बोल ना। इक्वेशन बोलोगे? इक्वेशन, एसेट, एसेट प्लस 50,000 कैश विल इंक्रीज ऑन असेट साइड, परफेक्ट, हाँ। इज इक्वल टू हम्म जीरो, कैपिटल नॉट चेंजेस ए। अरे कैपिटल ही चेंज हुआ है ना, ऐसे क्या, लाइबिलिटी है, बट लाइबिलिटी में एक टाइप है कैपिटल। लाइबिलिटी मतलब हम इसको कैपिटल इज लाइबिलिटी, ये दो टाइप्स की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, लाइबिलिटी टुवर्ड्स अदर पार्टीज। सो दिस इज ओनर ना, तो कैपिटल इंक्रीज बाय 50,000, कैपिटल। लाइबिलिटी बोलता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, एक लाइबिलिटी ओनर के टुवर्ड्स होती है एंड एक थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स होती है। जब किसी से गुड्स परचेस करोगे तो वो इसमें आ जाएगा, एंड ओनर ने कैपिटल दिया तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे, हाँ सेकंड बोल, परचेस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश ₹20,000। अविनाश से मशीनरी परचेस की क्रेडिट पे, अब भी किया था एक ऐसे ट्रांजैक्शन। हाँ,
First purchase account. ओके, परचेस अकाउंट. क्या परचेस किया? गुड्स परचेस किया, मशीनरी परचेस की तूने? हाँ, machinery account. अगर तूने मशीनरी परचेस की है, हाँ, मशीनरी अकाउंट. तो asset है. हाँ, हाँ, फिक्स एसेट है मशीनरी. हाँ. एंड दूसरा क्या है? Avinash account. बिकॉज अविनाश कौन होगा, डेटर या क्रेडिटर? Creditor. हाँ, तो उसको डेबिट करना होगा या क्रेडिट करना होगा? क्रेडिटर को. Credit. परफेक्ट. हाँ, मशीनरी इज असेट, राइट? Yes. अविनाश कौन हो गया मेरा? इज इट असेट, इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी? अविनाश कौन हो गया? व्हाट डू थिंक? अविनाश तेरा. Liability. या परफेक्ट, यू हैव टू पे टू अविनाश. गुड, परफेक्ट. सो इंक्रीज डिक्रीज बोलो. मशीनरी इंक्रीज या डिक्रीज हो गई तेरे पास? Increase. दोनों increase. द मशीनरी दोनों इंक्रीज. परफेक्ट, गुड. सो इंक्रीज इन असेट डेबिट, इंक्रीज इन Debit. क्रेडिट. तो Credit. एंट्री कैसे लिखेगा तू? मशीनरी Machine account. डेबिट, Machinery account. डेबिट, Debit अमाउंट 20,000 टू, to Avinash account. या क्रेडिट. Credit 20,000. सो इक्वेशन में बोलो, कैसे लिखेगा इक्वेशन में? Asset में plus 20,000 या is equal to capital not changes. परफेक्ट. Liability plus 20,000. या बिकॉज अविनाश कोई दूसरा बंदा है, समझा? इसलिए वो लाइबिलिटी में आया. अगर हाँ, होता तो कैपिटल में आता, समझा? हाँ, दिस इज मशीनरी, हाँ, इज वो हो गया क्रेडिटर. आगे. हाँ. परफेक्ट. गुड. अभी तक नेक्स्ट. फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड बोलो. गुड्स परचेस किए ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश. ऑन कैश मतलब तू राहुल के पास गया. First, हाँ, हाँ. और गुड्स परचेस किए. बोल. First purchase account. या गुड्स. First purchase account. या तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन 2 एंड 3? ट्रांजैक्शन 2 में तूने क्या परचेस किया था? फिक्स्ड असेट. Asset. Fixed asset. फिक्स असेट. असेट मत बोल, फिक्स असेट. Okay. इसलिए यूज किया मशीनरी अकाउंट. अब यहाँ पे तू क्या परचेस कर रहा है? गुड्स. क्या परचेस? गुड्स. तो गुड्स जब परचेस करेगा तो परचेस अकाउंट आएगा, ठीक है? गुड. परचेस अकाउंट. दूसरा क्या रहेगा? हाँ. इज इट राहुल Cash account. अकाउंट? यस, कैश. बिकॉज तू कैश देके आ गया. हाँ. इंक्रीज डिक्रीज, ये असेट है, एक्सपेंस जो भी बोलना है बोल. कैश इज असेट. हाँ, परचेस इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गए? Purchase increase. परफेक्ट. एंड असेट क्या हो गई? कैश क्या हो गई? Cash decrease. परफेक्ट. हाँ, डेबिट क्रेडिट क्या आएगा? परचेस. परचेस क्या होगा? डेबिट. Purchase debit. असेट इंक्रीज डेबिट. हाँ, और कैश क्या हो जाएगी फिर? Debit. क्रेडिट. Credit. हाँ, उल्टा. हाँ, तो अब देखो एंट्री कैसे लिखेगा? Purchase account. Debit गुड. 5,000 5,000. हाँ, क्रेडिट. to cash account. Credit 5,000. कैश कम हो गई. इक्वेशन में बोल. अब मुझे इक्वेशन में क्या करेगा? Asset में plus 5,000 और cash भी गई इसलिए asset में minus 5,000. Perfect. Stock increases 5,000. Cash decreases 5,000. No change in the capital, no change in the liability. बराबर? आगे. Yes, perfect. Next. Yes. एक मिनट. मुझे आने दे ऊपर. Next. Sold goods to Aniket on a credit 6,000. अब तू ये बोलेगा सर यहाँ पे कॉस्ट है, बराबर ना? इक्वेशन करने के लिए कॉस्ट इतना लिखा है कि गुड सेल के अनिकेत को 6,000 के, तो कुछ नहीं लिखा ना, तो हम कॉस्ट 6,000 मानेंगे. ठीक है, हम क्या मानेंगे? 6,000. अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कुछ तो एज्यूम करेंगे हम, तो हम मानेंगे 6,000 में सेल हो गए. एंट्री करने के लिए कॉस्ट प्राइस की जरूरत नहीं होती गुड्स के, बट इक्वेशन के लिए कॉस्ट प्राइस पता होना जरूरी है. तो मैं मान रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मींस नो प्रॉफिट नो लॉस. हाँ बोलो. टू अकाउंट्स. First sales account. या सेल्स अकाउंट. परफेक्ट. हाँ, Second Aniket account. अच्छा, अनिकेत कौन हो गया तेरा? Debtor. डेटर. वो डेटर होगा तो उसको डेबिट करेगा क्रेडिट करेगा? Debit. डेबिट. अच्छा,
अच्छा ये अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड अनिकेत अकाउंट। अच्छा सेल अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट होता है? सेल्स इज असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, सेल्स इनकम, ऑब्वियसली, गुड। एंड अनिकेत कौन हो गया तेरा? असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। उससे लेना है उसको देना है? एसेट, एसेट, लेना है उससे असेट, एसेट या सेल्स, लेना है। सेल्स इंक्रीज, बराबर, सेल किया तो सेल इंक्रीज होगा, बराबर। हाँ, और असेट भी क्या हो गई? एसेट, हाँ, एसेट आल्सो इंक्रीज, हाँ अब मुझे बोल, सेल इंक्रीज, डेबिट या क्रेडिट? इनकम इंक्रीजेस, क्रेडिट, परफेक्ट, हाँ। एंड असेट इंक्रीजेस, और एसेट इंक्रीजेस, डेबिट, एंट्री लिखते रहे। डेबिट। अनिकेत अकाउंट, परफेक्ट, डेबिट यस, गुड। 6,000 एक मिनट, हाँ। अनिकेत 6,000, गुड, हाँ। टू सेल्स अकाउंट, 6,000, टू सेल्स अकाउंट परफेक्ट, 6,000। 6,000। अब फोर्थ इक्वेशन में सोच के बोल, कॉस्ट प्राइस इज 6,000 ना, 6,000 के गुड 6 हाँ, हो गए अनिकेत को, हाँ। एसेट में -6,000 स्टॉक ना, गुड्स, हाँ, गुड्स कम हो, हाँ, स्टॉक, हाँ। हम्म, और अनिकेत कौन है तेरा? कैश आ गए या डेटर्स आ गए? Bill करोगे तो कैश आएगी या डेटर्स आएंगे? डेटर्स हो गए असेट, कैश है। कैश नहीं रहे उसको, डेट, कैश पे नहीं, ऑन क्रेडिट है। तूने एंट्री में हाँ, कैश लिखा है, अनिकेत लिखा है? हम्म, अनिकेत है डेटर, अनिकेत है डेट, हम्म, असेट है, डेटर है, तो असेट इंक्रीज हो गई, स्टॉक कम हो गया और डेटर्स इंक्रीज हो गए। फिर है कुछ कैपिटल में चेंज करने के लिए? नहीं। लायबिलिटी है कुछ? हम्म। गुड। नाउ फिफ्थ, हाँ, सैलरी पेड की तूने 1,000 की, सैलरी अकाउंट, परफेक्ट, हाँ। कैश अकाउंट, एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी, एक्सपेंस हो गया, बराबर ना, सैलरी कैश। एक्सपेंस, अब मुझे बोल टाइप्स ऑफ अकाउंट, सैलरी कौन सा अकाउंट? सैलरी एक्सपेंस, एक सेकंड, सैलरी इज एक्सपेंस, गुड। एंड कैश इज, एसेट, या, एक्सपेंस इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, गुड। एंड कैश, डिक्रीज, या, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो क्या करेगा? डेबिट, हाँ, एक्सपेंस सर, असेट क्या होगी? क्रेडिट, क्रेडिट, परफेक्ट। तो एंट्री क्या लेगा? सैलरी अकाउंट, डेबिट हाँ, 1,000 1,000 टू, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट 1,000। गुड। तो इक्वेशन में बोल, अब इक्वेशन सोच के बोल। जो आता है पहले वो लिख, तुझे दोनों में से जो आता है वो पहले बोल, मैं लिख दूंगा। एसेट में कैश आ गई 1,000, गई या गई? आई 1,000, सॉरी, गई। पेड ना 1,000, ये वाला, हाँ, हाँ। अब दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा, सोच के बोल। सैलरी क्या होता है? इनकम एक्सपेंस, एक्सपेंस है। इनकम एक्सपेंस किस में एडजस्ट होते हैं? इनकम एक्सपेंस किस में एडजस्ट होते हैं? कैपिटल, किसमें? कैपिटल, हाँ, तो कैपिटल कम होगा, कैपिटल, एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल कम होगा, नो चेंज इन द लायबिलिटी। इनकम एक्सपेंस किस में एडजस्ट करने के? कैपिटल में। प्रॉफिट लॉस किस में एडजस्ट करने का? कैपिटल, कैपिटल, हाँ। ड्राइंग्स किस कैपिटल, की? कैपिटल में। ड्राइंग्स भी कैपिटल, बिकॉज दे आर हाँ, ट्रांजैक्शन रिलेटेड। प्रॉफिट लॉस ओनर का रहता है, इसलिए कैपिटल में एडजस्ट होगा। 6 सोल्ड ओल्ड टेबल्स, टेबल्स मतलब फर्नीचर, फर्नीचर। हाँ, हमारे पास पुराना फर्नीचर रहेगा, हमने 3,000 में सेल किया, बोलो। फर्नीचर 3,000, कैश अकाउंट, अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, हाँ। दूसरा,
एंड फर्नीचर अकाउंट. बट सर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है सर आपको कॉस्ट प्राइस किधर है, कुछ लिखा है क्या? नहीं, तो मैं बोलूंगा नहीं. अब वैसे भी कॉस्ट प्राइस के लिए तो मैं बोल के चलता हूँ 3,000 ही था, अब क्या बोलूं, उन्होंने एंट्री करने को नहीं बोला है, उन्होंने खाली एस्पेक्ट ढूंढने को बोला था, 3,000 मान के चलता हूँ, ठीक है, दिस इज माई एजम्पशन, डोंट वरी एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे, बट कुछ तो देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, मैं 3,000 बोलता हूँ, 3,000 के फर्नीचर 3,000 में सेल हो गए, हाँ, सो कैश इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज. इंक्रीज, हाँ, और फर्नीचर, फर्नीचर डिक्रीज. परफेक्ट, फर्नीचर इज असेट, सो हाँ. कैश को क्या करेगा, डेबिट, और फर्नीचर को डेबिट. क्रेडिट. क्रेडिट, एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 कैश आ गई, फर्नीचर चला गया टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 3,000. कोई प्रॉफिट लॉस है क्या, 3,000 का 3,000 में नहीं. नहीं, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट इक्वेशन में, इक्वेशन में एसेट साइड में प्लस 3,000 माइनस 3,000. प्रॉफिट लॉस होता तो किस में एडजस्ट, अगर प्रॉफिट लॉस होता तो किस में एडजस्ट हो जाता, हाँ. कैपिटल. कैपिटल में, परफेक्ट, गुड, परफेक्ट, गुड, ऐसे क्या होता है इससे, दिस मेक्स इवन मुझे भी अच्छा लगता है, थैंक यू यश, परफेक्ट, गुड, आई फील कि यू आर इन्वॉल्व, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ठीक है, गुड, अच्छा किसी का डाउट है इसमें, एक कोई मुझे बोल सकता है सर, आप एक मैं बोलता हूँ मेरा ऑब्जर्वेशन के, ध्यान देना, अब क्वेश्चन दिया है लेकिन मैं क्या सोचूंगा, अरे सर मैंने 5,000 के गुड्स परचेस किए थे, हाउ कैन आई सेल गुड्स ऑफ 6,000, कोई बोलेगा अगर सर मैंने 5,000 के गुड्स परचेस किए थे, हाउ कैन यू से 6,000 के गुड्स 6,000 में सेल हो गए, पॉसिबल नहीं ना, अगर आपके पास 5,000 का माल है, हाउ कैन यू सेल 6,000 का माल, बट जो टेस्ट महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं उसके पीछे थॉट नहीं रहता, कोई सोच नहीं रहती, देना है इसलिए दे दिया, अब ये ओल्ड टेबल लिखा है, बट अरे ओल्ड टेबल रहेगा ना कुछ ना उसकी वैल्यू हमारे पास, तो कुछ भी ट्रांजेक्शन देते हैं और हम ऐसे मान के कर रहे हैं जैसे उनका कोई रिलेशन नहीं, मतलब 6 का पहले से कोई रिलेशन नहीं, 5th का किसी से रिलेशन नहीं, हर ट्रांजेक्शन को अलग मान के सॉल्व करना है, वी हैव नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो थॉट बिहाइंड द क्वेश्चंस, ये समझ लेना कि पहले कुछ तो रहेगा उसका, ये सोचते नहीं, डायरेक्टली दे देते, ठीक है, सो ज्यादा सोचते मत बैठो कि सर हमारे पास 5,000 का स्टॉक परचेस किया था, हाउ कैन यू से 6,000 का स्टॉक 6,000 में सेल हो गया, 1,000 किधर से आ गया, कोई मुझे बोल सकता है, बट महाराष्ट्र बोर्ड का यही प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रीट एवरी ट्रांजैक्शन एज ए इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन एंड दे आंसर इट, आगे विल बी टेकिंग टिल 10:40 या 40 तक लेंगे, सो अभी 8 मिनट है, 8 to 10 मिनट्स, मैंने पहले ही बोला है वी आर इंक्रीजिंग द टाइम नाउ, ठीक है, उतना पेशेंस होना चाहिए, घर पे वैसे भी आप कुछ नहीं कर रहे हो टू बी वेरी फ्रैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अच्छा ये किधर से लिया उन्होंने, आई डोंट नो, अच्छा ये ट्रांजैक्शंस दिए, दे आर गिवन यू ट्रांजैक्शन एंड उसकी एंट्री दी है, यू कैन ट्राई दिस, दिस इज योर सेल्फ होमवर्क, इसका आंसर इधर ही है, आपको है ना क्या इग्नोर करना है, मैं बोलता हूँ यू हैव टू डिलीट दिस कॉलम, इसको देखो मत, यू कैन सी दिस, आप है ना इनको भूल जाओ, ये ट्रेडिशनल मेथड से दिया है उन्होंने, एक मिनट, अच्छा मुझे फिर से शेयर करनी होगी मेरी स्क्रीन, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन,
हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये उन्होंने आंसर दिया है, ये वाले क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया है। नहीं, थोड़ा स्लो हुआ है, आई डोंट नो, अब भी हुआ है फिलहाल। मैं क्या समझा रहा हूँ ध्यान में। उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया, हम मॉडर्न मेथड फॉलो करते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बिकॉज मॉडर्न मेथड इज यूनिवर्सल मेथड। आप दुनिया के कोई भी कॉर्नर में जाओ, मॉडर्न मेथड मिलेगी, एंड मॉडर्न मेथड इज राइट, एंड तक यूजफुल होती है। सो ये जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है ना, अरे यार एक मिनट, जिनके पास टेक्स्ट बुक है, जिनके पास टेक्स्ट बुक है, वो क्वेश्चन देखो। मैं तब तक शेयर कर रहा हूँ फिर से एक बार कनेक्ट करके, होपफुली अब दिखेगा आपको। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, ये एक मिनट, हाँ, ये एक्टिविटी 1, पेज नंबर क्या था, 25। एक्टिविटी 1 पेज नंबर 25 है। टेक्स्ट बुक, मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ तो मुझे क्लिक होता है बाद में, मुझे भी बाद में देखना होगा ना मैंने क्या किया है क्या नहीं, इसलिए मैं लिखता हूँ। ये मेरी नोटबुक है, ठीक है, और ये मेरा पेज नंबर 82 पेज नंबर पे मैंने आंसर लिखा है। मैं इधर लिख दूंगा मेरा आंसर 82 पेज नंबर पे, मेरा लिंकिंग हो गया। हम्म, ये जो क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें यू हैव टू इग्नोर दिस थिंग्स, मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो, आपका मॉडर्न अप्रोच, डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट आपको मिल जाएगा। सो दिस इज सेल्फ होमवर्क, उन्होंने आंसर दिया भी है, खुद ट्राई करो। ट्रांजैक्शन हमने किए, कमेंस बिजनेस विद कैश, एडवर्टाइजमेंट पेड, राइट, एडवर्टाइजमेंट पेड है मतलब कैश है, एडवर्टाइजमेंट इन कैश अकाउंट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील, लिखा नहीं है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, दिस इज, लिख लेना थम रूल, थम रूल, थम रूल, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। if if transaction is silent on cash basis or credit basis, कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस, ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं लिखा है, जन लिखते हैं ऑन कैश ऑन क्रेडिट ऐसे लिखते हैं, राइट, बट नहीं है। देन if the transaction is silent on cash basis or credit basis and then name of party is given with whom transaction is entered is given, मतलब लिखा नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी सॉल्व करोगे तो एजम्पशन होता है कि ऑन कैश ऑन क्रेडिट कुछ नहीं लिखा है, कोई हिंट नहीं है कैश या क्रेडिट। तो अगर जिस बंदे के साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका नाम क्वेश्चन में लिखा है तो हम उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड एजम्पशन।
बट अगर नेम ऑफ द पार्टी विथ whom ट्रांजैक्शन एंटर्ड इज नॉट गिवन, लिखा नहीं है, मतलब कैश और क्रेडिट भी नहीं लिखा है और उस बंदे का नाम भी नहीं है, तो कैश ट्रांजैक्शन। then assume it is a cash transaction. Assume it is a cash transaction. Example: goods sold, goods purchased from Ram, रुपीज 5,000। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है सर, फुल स्टॉप। सर कैश ने लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा। सर आप लिखो ना ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, नहीं लिखा। तब देखो, डू यू नो द नेम ऑफ द पार्टी विथ whom you have entered into transaction? यस सर, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन इज साइलेंट ऑन कैश और चेक तो ऑलवेज कैश। कैश और चेक नहीं लिखा है, कैश ट्रांजैक्शन लिखा है, बट कैश है या चेक नहीं लिखा तो हमेशा कैश रहेगा। क्या माना जाएगा? कैश। गुड क्वेश्चन। द ट्रांजैक्शन विल बी कैश, मतलब कैश, कैश है या चेक है इसे लिखा तो कैश मानेंगे, ठीक है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 5,000। अब 11th 12th में हम कैश मानते हैं, सीए फाउंडेशन में हम चेक मानते हैं, बैंक। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज जनरली कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट दैट मच अलाउड इन इंडिया एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बट 11th 12th में हम कैश मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा नहीं कैश और क्रेडिट, बट राम का नाम लिखा है तो क्रेडिट है। गुड्स सोल्ड टू रहीम रुपीज 50,000। बस, कैश पे सेल है या क्रेडिट पे सेल है कुछ नहीं लिखा है, बट नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, तो दीज आर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। आगे यहाँ पे गुड्स परचेस रुपीज 5,000। बस, कैश ऑन क्रेडिट कुछ नहीं है। चलो ठीक है, नहीं बोला आपने कैश और क्रेडिट, हम एजम्पशन यूज करेंगे। किससे परचेस किया लिखा है क्या? नहीं, तो नेम ऑफ द पार्टी विथ whom ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इज नॉट गिवन, तो हम इसको मानेंगे कैश ट्रांजैक्शन। आगे गुड्स सोल्ड रुपीज 50,000। बस, कैश पे या क्रेडिट पे कुछ नहीं लिखा, कैश पे सेल किया है या क्रेडिट पे सेल किया कुछ नहीं पता। तो फिर मैं बोलता हूँ पार्टी का नाम दिया क्या, देखो नहीं, तो इसको माना जाएगा क्रेडिट कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो दिस इज एजम्पशन, एंड दिस एजम्पशन के साथ ही हम पूरे 11th and 12th में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अगर कैश एंड क्रेडिट लिखा नहीं है, अगर पार्टी का नाम लिखा है तो क्रेडिट लेके चलो, अगर पार्टी का भी नाम नहीं है तो कैश लेके चलो, कैश एंड चेक नहीं लिखा है तो कैश लेके चलोगे हमेशा, ठीक है। गुड क्वेश्चन, दैट वाज गुड क्वेश्चन। आगे अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। कैश क्रेडिट लिखा है क्या? नहीं, बट सुनील का नाम है, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, सो दिस इज क्रेडिट परचेज फ्रॉम सुनील। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इतना क्लियर लिखा है कैश, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 4,500, रिसीव्ड है कैश ट्रांजेक्शन, सो दिस इज सेल होमवर्क। ट्राई करो, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यू हैव टू सॉल्व दिस, दिस इज होमवर्क। एक्टिविटी 2 इज द होमवर्क विथ, हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच। एग्जाम में ऐसे नहीं बोलते, ये प्रैक्टिस के लिए एक्टिविटी, हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे। सो यू हैव टू शेयर द आंसर विथ मी, आई विल बी चेकिंग। पहले दो मेरे चेक करने बाकी, मैं आज चेक करूंगा अलोंग विथ राइट दिस, ठीक है। ये वीआईपी रूल्स थे, मैंने पहले ही बोला, इसी रूल पे हमारी अकाउंटिंग होती है। इंक्रीज इन असेट्स डेबिट, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट।
Increase in liabilities are credited, decrease debited. Increase in capital, credit the capital. Decrease in capital, debit the capital. Increase in revenues and gains, credit. Decrease in them is debit. ये मॉडर्न रूल है. Then so इसका आंसर उन्होंने दिया है. So this is your self homework. सब दिया है उन्होंने. सेल्फ होमवर्क. इट इज सेल्फ होमवर्क. ठीक है, आगे लिख लेना. आज आपको करना है. आपको मुझे मैं अभी बोल रहा हूँ ना. अब इसका आंसर नहीं दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ. एक्टिविटी 2 का जो है ना पेज नंबर 27 उसका आंसर नहीं दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो मुझे भेजो मैं चेक करूंगा. इसका आंसर सामने दिया है रे. इसलिए अब लाइक ये जो एक्टिविटी आई डोंट नो ये टेबल पेज नंबर 29 का टेबल उसका आंसर उन्होंने आपको हम जैसे लिखते हैं वैसे दिया है. देखो ना. Two aspects, two accounts involved, right? Accounts involved, categories, asset capital, right? Increase, decrease, debit and credit. This is modern approach. So ये आपको सेल्फ होमवर्क है बिकॉज वहां पे आंसर लिखा है. हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है सर इसमें से क्या करना है तो आप मुझे पूछो. आई विल रिवर्ट यू. ठीक है. दिस इज होमवर्क. ये मेरे साथ शेयर करना. एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3. Activity 2 from the page number 27 you have to share with me. Activity 3 from the page number 30 you have to share with me because उसका आंसर नहीं है. I will check it. ठीक है, आगे. दिस इज ऑल्सो होमवर्क. ये भी मुझे शेयर करना है. 3 होमवर्क दिए मैंने. लेट मी चेक. यस, ये कर सकते हो 1 to 9 ट्रांजेक्शन. उन्होंने आपका आंसर भी दिया है लाइक विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व बट डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है. तो यू हैव टू शेयर दिस आंसर विद मी. ठीक है, आगे. ये हमने पहले किया. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. स्टेशनरी अकाउंट इज एक्सपेंस. Machinery account is asset. Loss by fire is expense. Building is asset. Copyright is asset. Laptop is asset. As per modern, Mahesh can be asset or can be liability. I cannot tell you right now. Debtor है तो asset, creditor है तो liability. Capital is always liability. Pune Municipal Corporation can be asset or can be liability. Personal account है. Personal account can be asset or liability. Personal account can be asset or liability. Bank of Maharashtra is asset or liability. Depends. Repairs is expense. Wages is expense. Simple चीज है. आगे. हाँ, इन एक्टिविटी 3 ना मैडम ये वाले इसमें ये इलस्ट्रेशन जो है ना यू हैव टू पास एंट्रीज. मुझे एंट्री चाहिए. इक्वेशन नहीं किया तो भी चलेगा. एंट्रीज भेजो. मुझे एंट्रीज भेजो. कोई प्रॉब्लम नहीं. इक्वेशन मैं सिखा रहा हूँ बट ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रीज होते हैं. चलो इक्वेशन सर मुझे नहीं इतने से अच्छा आता चलेगा. एंट्रीज अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है. देन हाँ, यहाँ पे मुझे एंट्रीज इक्वेशन करके भेजते हो तो भी चलेगा. राइट. एंट्रीज तो मैंडेटरी है एवरीवन. ये हमने किया था और मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था. दिस इज इक्वेशन. ठीक है. ये उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए ना यू कैन स्टडी एट होम. उन्होंने सॉल्व करके एग्जांपल्स दिए ये वाले आपके. ये मैंने लिए सब एग्जांपल्स बट अलग अलग नाम के थ्रू लिए. आप घर पे ट्राई कर सकते हो. एग्जांपल उन्होंने दिए. तो कल हम ये बाकी एग्जांपल्स करेंगे. टुमारो वी विल डू दिस एग्जांपल्स. ठीक है. ये हम एग्जांपल्स करेंगे. फिर हमारे लिए चैप्टर ये चैप्टर हो गया. ये चैप्टर हो गया और फिर नेक्स्ट चैप्टर इज मेन चैप्टर विच इज जर्नल. ठीक है. जर्नल तो हम कर रहे हैं. डेबिट क्रेडिट एंट्री लिखना हम कर रहे हैं.
हमें इसे लिख रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट लिख रहे हैं, खाली फॉर्मेट ठीक से करेंगे, ठीक है। सो दिस इज फॉर द डे। सो कल भी मेरा लेक्चर रहेगा, आई विल इंटीमेट द टाइम, थोड़ा मैं जल्दी रखूंगा क्योंकि मैडम का लेक्चर रहता है ना, तो मैं थोड़ा जल्दी रखूंगा। सो यू कैन सी मैडम का कितना बजे रहेगा, 9:45 को रहेगा ना, तो 9:30 तक मेरा खत्म होना चाहिए। तो 8:30 को हम स्टार्ट करिए, वी विल टेक 1 आवर ओनली टुमारो, बट 8:30 को लेंगे, ठीक है। थैंक यू।